اسرائیل نے ایران کے صوبے اصفہان ہوائی اڈے پر میزائل حملہ کر دیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، حملے کے بعد زوردار دھماکے کی آوازیں سنائی گئیں، جس کے بعد ایران نے اصفہان سمیت کئی شہروں کے لیے پروازیں معطل کر دی۔ اس کے علاوہ شام اور عراق میں بھی اسرائیل کے فضائی حملے کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ متعدد شہروں میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا۔ ایرانی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ طیارہ شکن اسلحے سے 3 اسرائیلی ڈرون مار گرا دیے گئے۔ کراچی کے علاقے لانڈی کی ماسیرا کالونی میں غیر ملکی شہریوں کی گاڑی کے قریب خودکش دھماکہ، 2 دہشت گرد ہلاک اور 2 سیکورٹی گارڈ سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ایس ایس پی مرید طارق الہی نے بتایا کہ تمام غیر ملکی شہری ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے لانڈی کی ماسیرا کالونی میں گاڑی کو نشانہ بنایا، جس میں 5 جاپانی شہری سوار تھے۔ حملے کے نتیجے میں تمام غیر ملکی شہری محفوظ رہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کراچی کے علاقے لانڈی میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شرپسند عناصر کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا، تمام قوم مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرے۔ انہوں نے پولیس کی دہشت گردوں کے خلاف بروقت کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پولیس نے بڑے جانی نقصان سے بچا لیا، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ عالمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع طلعت بن عبداللہ العتیبی نے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سجی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی پیداوار سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور، ملٹری تربیت کے امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف نے سعودی رائل فوج کی صلاحیت بڑھانے کے پاک فوج کے عزم کو دہرایا۔ سعودی وزیر نے دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کی قرارداد کو امریکہ کی جانب سے ویٹو کرنے پر افسوس ہے۔ عالمی قوانین کی پاسداری کی بجائے اسرائیل سرعام خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ سعودی وقت کے دورہ میں پاکستان میں 9 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کے لیے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ کہا مسئلہ کشمیر کے حل تک حمایت جاری رکھیں گے۔ آئی ایم ایف حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان جب کہے گا فنڈ مہیا کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف حکام نے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کی معاشی صورتحال پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایس پی اے کا آخری جائزہ مکمل کر لیا گیا، اب بورڈ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سٹی بینک کے حکام سے واشنگٹن میں ملاقات، مثبت معاشی اشاریوں پر بریفنگ کی۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ طے پانے والے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے بارے آگاہ کیا۔ برطانوی وزیر مملکت برائے ترقی اینڈریو مچل سے بھی ملاقات، تعلیم، صحت اور مالیاتی شعبوں میں طویل المدتی شراکت داری پر زور دیا۔ انہوں نے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے سی او سلطان عبدالرحمان المرشد سے بھی ملاقات کی اور حالیہ دورہ سعودی عرب اور سعودی وقت کی آمد کے بارے میں بریفنگ کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی بینک کی گول میز کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں نیہا پرویز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، براہ راست آپ کو ایوان صدر لیے حاضر ہوں گے۔ ایک بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मामले वजीर दिफा तलाल बिन अब्दुल्ला अल उतीबी ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई पैदावार समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर, मिलिट्री तरबियत के अमूर का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए पाक फौज के अज़म को दोहराया। सऊदी वजीर ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। सऊदी वजीर ने आलमी अमन और इस्तेकाम के लिए पाक फौज के किरदार को भी तस्लीम किया। ISPR के मुताबिक सऊदी वजीर ने GHQ में पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुशावरती इजलास में भी शिरकत की। इजलास में आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनके असरात का जायजा लिया गया। दौरान इजलास दिफा के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने और ताउन बढ़ाने का जायजा लिया गया। इजलास में दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज करने के अज़म का अयादा भी किया गया। ISPR के मुताबिक इजलास में जमीनी, फिजाई और बहरिया के शोबों में चैलेंजेस से निपटने के लिए सलाहियतें बढ़ाने के अज़म का अयादा भी किया गया, जबकि मतलूबा मकासद के हसूल के लिए सिफारिशात पर भी गौर किया गया। और नाज़रीन, अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल ने ईरान के सूबे अस्फहान पर मिसाइल हमला कर दिया। हमले के बाद जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई, जिसके बाद ईरान ने अस्फहान समेत कई शहरों के लिए परवासें मअतल कर दी हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान के सूबे अस्फहान में हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। इसके अलावा शाम और इराक में भी इसराइल के फजाई हमले करने की इत्तला मौसूल हुई है। हमले के बाद धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं। धमाकों में किसी के हलाक या जख्मी होने की फिलहाल कोई इत्तला नहीं मिली। ईरानी मीडिया ने धमाकों की तस्दीक करते हुए बताया कि इस्फहान एयरपोर्ट के नजदीक धमाके की आवाज सुनी गई। इसराइल के फजाई हमलों के बाद ईरान में तेहरान, शिराज और इस्फहान के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स की बंदिश के बाद हर किस्म की परवाजें मअतल हो गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फहान के हवाई अड्डे पर धमाके के बाद ईरान ने मुतादिद शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि त्यारा शिकन असले से 3 इसराइली ड्रोन मार गिराए गए। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फजाइया ने अस्फहान पर हमला करने की तस्दीक कर दी है, जबकि अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि इराक के जनूब मगरिब में इसराइली जंगी तैयारों ने परवाज की है। इराक और शाम में भी एहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के मकामी मीडिया ने कहा कि अस्फहानी धमाकों की आवाजें सुनने के बाद शहर में जोहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। ईरान ने इसराइल को जोहरी तंसीबात पर हमले न करने की वार्निंग दे दी। ईरानी जनरल अहमद हक तालिब का कहना है कि अगर इसराइल ने जोहरी तंसीबात पर हमला किया तो मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कराची के इलाके लांडी की मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्की शहरियों की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। ISPR मलिक तारिक इलाही ने बताया कि तमाम गैर मुल्की शहरी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने लांडी की मानसेरा कॉलोनी में गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 5 जापानी शहरी सवार थे। हमले के नतीजे में तमाम गैर मुल्की शहरी महफूज रहे। दूसरी जानिब DIG ईस्ट गुलाम असफर मेसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जाय वक़ुआ के करीब काले बैग में हैंड ग्रेनेड और मोटरसाइकिल मिली है, जबकि काले बैग के अंदर भी हैंड ग्रेनेड मौजूद है। DIG ईस्ट ने बताया कि गैर मुल्की शहरियों के साथ मुसल्ला गार्ड मौजूद था, जिसने हमलावर पर जवाबी फायरिंग की और वो खुद भी जख्मी हुआ है। जाय वक़ुआ से दहशतगर्द के इल्जाम मिले हैं। गुलाम असफर मेसर ने तस्लीम किया ये खतरा मौजूद है कि गैर मुल्की शहरियों को निशाना बनाया जाएगा। इस सिलसिले में इजलास भी मुनक्किद हुए थे, इसीलिए CPEC और दीगर प्रोजेक्ट पर सिक्योरिटी सख्त की गई थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से मानसेरा कॉलोनी में धमाके की IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुराद अली शाह ने कहा कि ये दहशतगर्द कौन थे, कहाँ से आए थे और उनके सहूलतकारों समेत तमाम मालूमात हासिल की जाएं। वज़ीर आला सिंध ने धमाके में इस्तेमाल होने वाले बारूद की भी तफसीलात मालूम की। वज़ीर आला का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासिर अमन व अमान खराब करना चाहते हैं, जिसकी किसी कीमत इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने कराची के इलाके लांडी में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कराची के इलाके बालाकंड में धमाके और फायरिंग की मजम्मत करते हुए कहा कि शरपसंद अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। तमाम कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। उन्होंने पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि पुलिस ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से हम किसी बड़े जानी नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की हर मजमूम कार्रवाई को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की है।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी लांडी हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई पर सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर सस्ती रोटी और नान की कीमतों का जायजा। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदस अरशाद ने डीपीओ फैसल गुलजार के हमरा शहर के मुख्तलिफ तंदूरों और होटल्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने खरीदारों और होटल्स पर खाना खाने वाले शहरियों से सस्ती रोटी की कीमतों के हवाले से राय ली। डिप्टी कमिश्नर सुंदस अरशाद का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सस्ती रोटी और नान की फरोख्त के लिए भरपूर इकदाम किए गए हैं। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना होटलों और तंदूरों के दौरे भी कर रहे हैं। जहां कहीं खिलाफ वर्जी दिखाई देती है तो वहां के होटल और तंदूर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उनका कहना था कि हाफिजाबाद, पिंडी भटियां, सकेकी मंडी और दीगर इलाकों के मुख्तलिफ होटल्स और तनूरों पर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक रोटी और नान की मुकर्रर करदा कीमतों की प्रैक्टिस अवेसा करवा दी गई है। हुकूमत पंजाब का खसूसी शिकायत सेल का नंबर भी दर्ज है। और नाज़रीन, गंदुम की कटाई, लोहारों की भी खूब कमाई। अहमदपुर सियाल में भी किसान रवायती तरीके से गंदुम की फसल को काटने के लिए दरांतियों की खरीदारी कर रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। गंदम की कटाई, लोहारों की भी खूब कमाई। अप्रैल का महीना लोहारों के लिए भी खुशी का पैगाम लेकर आता है, क्योंकि इस माह गंदम की फसल की कटाई के लिए किसान दरांतियां खरीदते हैं, जिससे उनका कारोबार चमक उठता है। अहमदपुर सियाल में भी किसानों ने सदियों पुराने रिवायती तरीका से गंदम की कटाई के लिए दरांतियां खरीदने के लिए लोहारों की दुकानों का रुख किया है। कोई पुरानी दरांती के दंदानों को तेज धार लगवा रहा है तो कोई नई दरांती खरीद रहा है। दंदावन वाले भी आ गए, फसल वास्ते गरीब आदमी शुरू दातरी सेल करवा रहे हैं और नई दातरियाँ ले भी रहे हैं गंदम वास्ते। तो ऐसा कब तक कटाई शुरू कर देंगे? कटाई शुरू होगी तकरीबन अपना 2-3 दिन लगभग, 2-3 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। तो आप दरांती लेने के लिए आए हैं तो रेट कितना था? एक दातरी का 300 रुपया। तो ये सस्ती है या महंगी है? महंगी तो है जनाब। दातरी कटन जो ना फसल को बेहतरीन अच्छा हो कि हार्वेस्ट तो नुकसान ज्यादा होता है, इस वजह तो असा दातरियां कटाई करनी अच्छी है। होशरुबा महंगाई की वजह से दरांती की कीमत को भी पार लग गए हैं। नई दरांती 300 रुपए में मिलती है। आईजी पंजाब के अहकामात पर एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस, आरपीओ, डीपीओ खानेवाल की हिदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस खानेवाल मोटरवे M4 रेस्ट एरिया पर मुसाफिरों के लिए खिदमत वैन कैंप लगाया गया है। कैसर चौधरी रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में रोटी और नान की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पंजाब की जानिब से नान 20 रुपए और रोटी 16 रुपए में फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। हमने रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देंगे। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का नान और रोटी की कीमत और वजन चेक करने के हवाले से ऑपरेशन जारी। वजन में कमी और जायद कीमत पर नान और रोटी फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से ऐसे दुकानदारों को जुर्माना आयद किया गया जो कि मुकर्ररा कीमत से जायद कीमत वसूल करते थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अवाम को मुकर्ररा कीमत से जायद पैसे तलब करने वालों के खिलाफ शिकायत। और नाज़रीन, दूसरी जानिब बहावलपुर में मुर्गी के गोश्त को पलट गए। मुर्गी का गोश्त भी खरीद की पहुंच से दूर होने लगा। शहर में कहीं 780, कहीं 750 रुपए में फरोख्त हो रहा है। देखिए फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट।
آئی جی پنجاب کے احکامات پر ایڈیشنل آئی جی ٹریفک آر پی او اور ڈی پی او خانیوال کی ہدایات پر سٹی ٹریفک پولیس خانیوال موٹر وے M4 ریسٹ ایریا پر مسافروں کے لیے خدمت وین کیمپ لگایا گیا۔ سٹی ٹریفک پولیس خانیوال اور ڈسٹرکٹ پولیس کی طرف سے آج موٹر وے M4 ریسٹ ایریا مخدوم پور پر خدمت وین کیمپ لگایا گیا۔ پبلک سروس ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں میں سوار مسافروں کو لائسنس اور ویریفیکیشن بوانا میں پنجاب کی ثقافت نیزہ بازی کو زندہ رکھنے کے لیے سالانہ نیزہ بازی کے مقابلے جاری۔ ملک بھر سے نیشنل اور انٹرنیشنل سطح کے 44 مایہ ناز گھڑ سواروں نے اس شاندار مقابلہ جات میں حصہ لیا۔ چمن عباس العباس اسٹیڈیم میں 3 روز جاری رہنے والے نیزہ بازی کے مقابلوں میں ملک بھر کے شاہ سواروں نے اپنی دلیری اور مہارت کے جوہر دکھائے۔ جیسے ہی شاہ سوار اپنے ہدف میں کامیاب ہوتا تو شائقین اسے دل کھول کر داد دیتے۔ اسٹیڈیم تالیوں سے گونج اٹھتا۔ لوگوں کی بڑی تعداد اسٹیڈیم میں نیزہ بازی کے مقابلوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ آرگنائزر سید حسین عباس شاہ نے کہا کہ ہم ہر سال نیزہ بازی کے مقابلہ جات منعقد کرواتے ہیں جس میں اندرون اور بیرون ممالک سے گھڑ سوار شرکت کرتے ہیں اور 3 دن تک مقابلہ جاری رہتا ہے۔ جبکہ شائقین کا کہنا تھا کہ پنجاب کی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے پروگرام ہونے چاہیے۔ پروگرام کے آخر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بابر حسین لک کو گولڈ میڈل اور 1 لاکھ روپے انعام سے نوازا گیا۔ لیاقت پور ترنڈا محمد پناہ اور اس کے مضافات میں تیز بارش کے باعث پانی گلیوں اور روڈ پر جمع ہو گیا۔ سرد ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس دوران بجلی بھی بند رہی۔ بارش کے باعث گندم کی فصل متاثر ہونے سے کسان شدید پریشان ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق حالیہ بارشیں گندم کی فصل کے لیے نقصان دہ ہیں جس سے فصل کی کٹائی بھی رک جائے گی۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ کشمور پولیس کا شراب کی بھٹی پر چھاپا، 90 لیٹر کچی شراب برآمد کر لی گئی۔ ایس ایس پی کشمور بشیر احمد بروہی کی ہدایت پر سماجی برائیوں میں ملوث ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ملزم اصغر علی چاچر ول عبد الرحمان کروڑ محلہ میں خفیہ طور پر شراب کی بھٹی چلا رہا تھا کہ مددگار کشمور پولیس نے کارروائی کی۔ گمبٹ میں نامعلوم مسلح افراد کی وکیل کے آفس میں فائرنگ، وکیل زخمی ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق بیرسٹر امیر حیدر جسکانی کے آفس میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے۔ فائرنگ سے زخمی امیر حیدر جسکانی کو گمبٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لکی مروت تحصیل سرائے نورنگ کے MP طارق سعید خان کی تحصیل سرائے نورنگ نادرہ آفس آمد۔ MP طارق سعید خان کی ڈائریکٹر سفید عالم سے نادرہ میں عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی بات چیت۔ MP طارق سعید خان نے ڈائریکٹر سفید عالم کا نادرہ میں اسٹاف کی کمی کو پورا کرنے کا مطالبہ۔ MP طارق سعید خان نے 1 مہینے تک نادرہ میں اسٹاف کی کمی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کی مکمل یقین دہانی کروائی۔ MP طارق سعید خان نے خواتین اور مردوں کے درمیان پردے کے لیے اپنی طرف سے شیٹ کی بھی منظوری دی ہے۔ شکرگڑھ میں دوسرے احتشام میموریل ڈراگا بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ شکرگڑھ میں ایگریکلچر گریجویٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے عید کپ کے نام پر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس کے انتظامی فرائض ایسوسی ایشن کے سرپرست شفیق ظاہر، صدر عثمان اکبر، حافظ احمد اور حافظ عبد الرحمان نے سر انجام دیے۔ ٹورنامنٹ میں 12 ٹیموں نے حصہ لیا۔ زین علی نے میچ ریفری کے فرائض سر انجام دیے۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں کیسر جاوید اور محسن علی فتح رہے جبکہ محمد فیصل اور عدیل اختر رنر اپ قرار پائے۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر مہمان خصوصی اعتزاز بشیر، SHO اور فہد یعقوب چودھری، امیر جماعت اسلامی شکرگڑھ نے فاتحہ اور رنر اپ ٹیموں کو ٹرافیاں اور کیش پرائز دیے۔ مہمان خصوصی اعتزاز بشیر اور فہد یعقوب چودھری نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ راگا کی طرف سے اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ راگا کی قیادت اور ٹیم جہاں سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے وہیں پر صحت افزا جسمانی سرگرمیوں میں اپنی ٹیم کو بھی چست و چوبند رکھنے کے لیے حوصلہ افزا کام کر رہی ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی ڈاکٹر رانا محمد طارق نے ڈسٹرکٹ پاپولیشن اینڈ ویلفیئر آفس بہاولپور میں شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے موسم بہار کی شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا لگا کر ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی۔ ڈاکٹر رانا محمد طارق نے کہا کہ پھولوں کی نمائش کا انعقاد ماحول دوست اقدامات کو فروغ دیتا ہے۔ پھول اور پودے ماحول کو معطر اور خوشگوار بناتے ہیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر نعمان شمشی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر محمد ادریس، ڈاکٹر حفصہ رحمان، مریم سلیم، سٹاف آفیسر گورنر پنجاب میاں شاہد اقبال، راؤ رضوان رشید،
फहीम हसन कुरैशी, शहाब रहमानी, जिशान खालिद और काशिफ रजा मौजूद थे। और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब का नारा जलालपुर भटिया में बुरी तरह नाकाम हो गया। शहरी आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बासर अफराद की जानिब से शहर के मेन रोड की तारा रोड पर चावलों की स्टीम बनाने में इस्तेमाल होने वाली आग की बाकियात को मेन रोड पर फेंक दिया गया है, जिसके बाद शहरी अजियत में मुब्तला और आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तेज आंधी के बायस आग की बाकियात राहगीरों के लिए बबाले जान बन गई। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार हमने इस मसले को उठाया, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहरियों ने अपील की है कि आग की बाकियात को उठवाकर वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब के नारे की लाज रखी जाए। मेलसी और गिरदो नवाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आसमान पर गहरे बादलों का राज। बारिश की वजह से गंदम की कटाई का सिलसिला रुक गया। गंदम की फसल को नुकसान का खदशा, किसान परेशान हो गए। मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। रतुडेरू में नादरा ऑफिस के इम्कानी मुंतकिली के खिलाफ सियासी समाजी हलकों और शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया। अख्तर बरीदी, मल्हार सिंधी, मीर मौला बख्श बरोही और निशात तहीम के रहनुमाओं में नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना दिया गया। मजीद तफसीलात असमतुल्लाह थंबर की इस रिपोर्ट में देखिए। जी बिल्कुल, रतोडेरो नादरा ऑफिस के इम्कानी मुंतकिली के खिलाफ शहर के सियासी समाजी रहनुमा और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। उसी मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि आज नादरा ऑफिस की शहर के बाहर मुंतकिली के खिलाफ है। हम आखिर ये कह रहे हैं कि हम शहरियों को किस चीज़ की सजा दी जा रही है। ये बीच शहर में हमारी नादरा ऑफिस है, उसको बाहर मुंतकिल करना, ऐसे रोड पे मुंतकिल करना जहाँ डाकुओं और चोरों का इलाका है, जैसे शहरियों को वहाँ आने जाने में भी दुश्वारी महसूस होगी। हम ये मुतालबा करते हैं कि नादरा ऑफिस की शहर से बाहर मुंतकिली रोकी जाए। जहाँ ऑफिस है वहाँ हर सहूलत है, वहाँ ऑफिस मुकर्रर की जाए। हमारे शहरी समूह का मुतालबा है। ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं। असल बात ये है कि ये रतोडेरो नादरा ऑफिस है, ये मेन सिटी में है। यहाँ तमाम शहरियों को सहूलत है। यहाँ 3-4 इदारे और भी है। कुछ बासर लोग पैसे और ताकत के जोर पर जो है ये जो नादरा ऑफिस है ये दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहता है, जो रतोडेरो सिटी से ही बाहर है। ऐसे समझो कि बलोचिस्तान का एरिया है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि भाई ये 3-4 लाख जो आवाम का फैसला है यही इसको रहने दे। यहाँ लोगों को सहूलत है, दूर दराज लोगों को नहीं धकेले, रक्षे का किराया वापस आ जाए। हर कोई गरीब मजदूर आदमी है, ये गरीब मजदूर किधर जाएंगे। हम जिस जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है वो डाकुओं का इलाका है, बोसड़ रोड, हम उसको कश्मीर रोड कहते हैं। इस जगह पर नादरा ऑफिस है, बहुत अच्छी जगह है, आसानी है। और मैं इस अमल की भी मजम्मत करता हूँ कि एक साजिश की तहत जहाँ इस ऑफिस को मुंतकिल कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है नादरा ऑफिस की उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और जहाँ मुंतकिल किया जा रहा है वो भी किसी बासर की प्रॉपर्टी है। 1,25,000 रुपया जो है वो रेंट के लिए यहाँ से ये आवाम से जो सहूलत छीन रहे हैं। नादरा ऑफिस यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, जो बाईपास पे है, बहुत दूर है वो। ये अवामी पार्क के बीच में है और इतनी यहाँ ऑफिस की एरिया भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के ये हमें समझ में नहीं आ रही कि नादरा ऑफिस यहाँ से शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। यहाँ यूज़र बढ़ाए जाए, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं वो 4 हैं, उनकी जगह आप 8 कर लें, 10 कर लें। तो यहाँ बहुत बड़ी एरिया है, सिक्योर है, कंपाउंड वाल है और पब्लिक पार्क के बीच में है। पैदल फैमिलीज जो है वो यहाँ चल के आए। मुजाहिरीन का कहना था कि नादरा ऑफिस जो एक पब्लिक पार्क और शहर के बीच में है। कंगवानी में 2 रोज कबल अगवा होने वाली मुगमी बस ड्राइवर सरदार कंगवानी और क्लीनर इल्ताफ पहोड़ की डाकू ने वीडियो वायरल कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू की जानिब से मुगमियों की जंजीरों से जकड़ कर वहशाना तशद्दुद किया जा रहा है। मुगमियों की जानिब से SSP को अपील की जा रही है कि डाकू की गिरफ्तार औरतों को रिहा किया जाए, फिर ये हमें छोड़ेंगे। गुज़िश्ता 2 दिन में 3 अफराद को डाकू ने अगवा कर लिया। पुलिस की जानिब से ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन ताहाल कोई मस्बत कामयाबी ना मिल सकी। SSP कश्मीर का कहना है कि डाकू के मुज़ाकरात को नहीं मानते
ऑपरेशन जारी है, जल्द नौजवान बाजियाब होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी शोबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम महफिल मुशारे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मरूफ शोरा कराम ने शिरकत की। हाज़रीन ने तमाम शोरा कराम को दिल खोल कर दाद दी। तफसीलात अब्दुल हई सबासी की इस रिपोर्ट में। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समंदरी के शोबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम शानदार महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें मरूफ शायर मोहम्मद अशरफ शाकिर, बाबा गुलाम हुसैन नदीम, नदीम नाजिद, अयूब कमोका, शाहीन अब्बास और कॉलेज स्टाफ समेत तुलबा और तालाबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुशायरा की सदारत प्रोफेसर जुल्फकार हुसैन ने की। इस मौका पर शोरा इकराम का कहना था कि तालीमी अदारों में मुशायरों का इनेकाद फरोग अदब के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। यकीनन मुशायरा एक बहुत अच्छी रवायत है और ख़ास तौर पर आपके प्रिंसिपल साहब और ज़फ़र साहब की ये काविशों से ये किसी भी कौम की तरक्की के लिए, उसके मिजाज की तरक्की के लिए, उनके किरदार की तरक्की के लिए इस तरह के इवेंट जो हैं वो बेहद ज़रूरी होते हैं। आज हमने बहुत ही अच्छे शोरा कराम को सुना, अपना कलाम भी सुनाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मुशायरे स्टूडेंट ने सुने हैं, तलबा व तालबात ने, ये उनकी ज़िंदगी में बड़े संगे मील की हैसियत से उन्हें काम देंगे। पहले तो मैं रईस अदारा वड़ैच साहब नूं ढेर बधाई देना वा कि बड़ा कामयाब मुशायरा होया, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जेडे ने इन्हां नूं एक नवी तहरीक मिलदी है, नवी गल मिलदी है। शोरा इकराम ने दिलकश अंदाज में कलाम सुनाकर सामाईन पर सहर तारी कर दिया। तुलबा और तालाबात ने पूरे इन्हमाक से कलाम सुना और भरपूर दाद दी। प्रिंसिपल कॉलेज हाजा इम्तियाज हुसैन वड़ाइच और शोबा उर्दू के इंचार्ज मरोर और गिरदो नवा में तेज आंधी के साथ तूफानी बारिश और जालाबारी गंदम की तैयार फसल तबाह और दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं। सोलर प्लेट्स, तैयार सब्जियां और दीगर फसलात भी बुरी तरह मुतासिर हुई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मरोर और गिरदोनवा में तेज आंधी के साथ तूफानी बारिश और जालाबारी गंदम की तैयार फसल तबाह और दरख्त जड़ों से उखड़ गई हैं। सोलर प्लेट्स, तैयार सब्जियां और दीगर फसलात भी बुरी तरह मुतासिर हो गई हैं। डहरकी में बिजली चोरों और बकाया जात अदा न करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सेप्को डिवीजन में विफाकी हुकूमत के अहकाम पर पुंडिया माफिया और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डहरकी में बिजली चोरों और बकाया जात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का बिला तफरीक आगाज कर दिया गया है। सेप्को डिवीजन में विफाकी हुकूमत के अहकाम पर पुंडिया माफिया और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि डहरकी में बिजली चोरों और बकाया जात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का बिला तफरीक आगाज कर दिया गया है। सेप्को डिवीजन में विफाकी हुकूमत के अहकाम पर कुंडा माफिया और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि डहरकी में बिजली चोरों और बकाया जात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का बिला तफरीक आगाज कर दिया गया है, जबकि सेप्को डिवीजन में विफाकी हुकूमत के अहकाम पर कुंडा माफिया और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज भी कर दिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट करते जाएं कि डहरकी में बिजली चोरों और बकाया जात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का बिला तफरीक आगाज कर दिया गया है। सेप्को डिवीजन में विफाकी हुकूमत के अहकाम पर कुंडा माफिया और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। और नाज़रीन, एबटाबाद इंतजामिया की नाअहली और बेबसी की इंतहा। सूबा भर में आटा सस्ता, रोटी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन इंतजामिया एबटाबाद शहर का नोटिफिकेशन जारी ना कर सकी। पख्तूनख्वा के दीगर इस्लाम में रोटी 15 जबकि एबटाबाद में अब भी 25 रुपए की फरोख्त हो रही है। मजीद जानते हैं उबैदुर्रहमान सुलेमानी से। बाद में हम मौजूद हैं इंतजामिया की नाअहली और बेबसी की इंतहा। ये है कि एबटाबाद के अंदर इस वक्त तक आटे की कीमत में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिली। आटा 3000 से कम होता हुआ अब 2200, 2300, 2400, 2500 तक पहुंचा है। लेकिन तंदूरों पर जितने भी नान भाई हैं वहां पर किसी एक तंदूर पर भी एक तो वजन पहले बराबर नहीं था, अब भी जो कीमत है वही 25 रुपए में फरोख्त की जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आटे की कीमत 2200 रुपये हो चुकी है, बरकफ अभी तक जो है ना तंदूरों पे रोटी का रेट वही चल रहा है। ये इंतजामिया की बेइज्जती और लाकानूनियत है
उधर से वज़ीर आला साहब जो है ना ऐलान करते हैं कि जी मैं अमर दरामद कराऊंगा, और यहाँ पे अमर दरामद होना तो दूर की बात है, एबटाबाद के अंदर अभी तक जो है ना कोई नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ। वज़ीर आला साहब जो है ना वो नारे मारते रहे। बिल्कुल ही शेरी सी वाली बात हुई है। जिस तरह हरीपुर में, मनसेरा में रोटी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, एबटाबाद में इस तरह का अभी तक कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। एबटाबाद की इंतजामिया अगर जाग गई हो, अगर होश में आ गई हो, उनकी छुट्टियां खत्म भी हो चुकी हैं, अगर आप होशो आवाज़ में हैं तो खुदा रहे एबटाबाद की आवाम पर रहम खाएं और आटे की जिस तरह लकी मरवत में सूबाई पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर मलिक पख्तून यार की एमपीए तारिक सईद खान के हुजरे में आमद। एमपीए तारिक सईद खान ने पब्लिक हेल्थ में अवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली बातचीत की। इस मौके पर मलिक पख्तून खान यार ने एक्सेंट पब्लिक हेल्थ को अवाम के दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तहसील सराय नूरन के लिए मंजूर करदा पब्लिक हेल्थ ऑफिस, जिसकी तमीर पर अनकरीब तामीराती काम शुरू हो जाएगा, की मदद से अवाम को बेहद रिलीफ मिलेगा। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। कोहिनूर न्यूज के सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सऊदी अरब के वजीर खारजा का दौरा कामयाब रहा। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, इसमें सऊदी अरब का एक अहम किरदार होगा और उनका इरादा है कि पूरे पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करेंगे, जिससे पाकिस्तान की आवाम को रोजगार के मौके मिलेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। सोनिया आप सवाल जी चकवाल का सोनिया आप सवाल सर, आप वजीर खारजा भी रह चुके हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि सऊदी अरब के वजीर खारजा भी आए थे, तो देखा जाए तो पाकिस्तान में मईशत का एक पॉजिटिव वेव हम कह रहे हैं कि आना शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल भी दी हुई है। जैसे कल उन्होंने एक हालात पैदा कर दिए थे। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि 2014 की बात करें तो तब भी चाइना के वजीर आजम ने आना था, लेकिन इसी तरह प्रोटेस्ट हुए थे तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो हमारा जो इंटरनेशनली रिलेशन है वो कहाँ तक कैसे जाएंगे? जहाँ तक सऊदी अरेबिया का वजीर खारजा का दौरा है, मैं समझता हूँ कि कामयाब तरीन दौरा रहा है, और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इंशाअल्लाह ताला इसमें सऊदी अरेबिया का एक बड़ा किरदार होगा, और पूरा पाकिस्तान में इनका इरादा है कि वो इन्वेस्ट करे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को रोजगार के मौके मिलेंगे और हमारा मीशत को फायदा होगा। और अब ये हमारा कौमी जिम्मेदारी है, चाहे वो आप हुकूमत में हो, हुकूमत के इत्तेहादी हो या अपोजिशन में हो, कि जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट आए आप उनको वेलकम करें। आपको याद होगा कि जब सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस आया था तो खान साहब वजीर आजम था, तो वो उसका गाड़ी भी चला रहा था। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जब सऊदी अरेबिया का वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद था, तो तब पीटीआई का एक सियासतदान ने एक बार फिर एक गलत झूठा इल्जाम सऊदी अरेबिया पे, सऊदी अरेबिया की क़यादत पे लगाया और कहा कि ये लोग भी खान साहब को हटाने की साजिश में मुलविस थे। इस बयान का हम ना सिर्फ मज़म्मत करते, मगर ये जो बचकाना सियासत है पीटीआई का, कि वो कभी कभार अभी अपना एक मेंबर को आगे करते हैं, उनसे मुतनाज़ा बयानात दिलवा देते हैं, और फिर जब पाकिस्तान के अवाम से सख्त रद्द-ए-अमल आता है फिर वो उस बयान को डिसोन करते। इस किस्म की दोगली सियासत और दोगली टू फेस सियासत नहीं चल सकता, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जिम्मेदारान बयानात देना चाहिए। ये जो झूठ के मुद्दनी सियासत जो खान साहब ने शुरू किया, इससे ना सिर्फ पीटीआई को नुकसान हो रहा है, मगर पाकिस्तान को, पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी को इस तरीके से नुकसान होगा कि हमने हमेशा सऊदी अरेबिया को या जो भी हमारे फॉरेन पार्टनर्स है, ऐसे नहीं होता है कि किसी एक जमात का ताल्लुक है सऊदी अरेबिया से, ये पाकिस्तान का ताल्लुक है सऊदी अरेबिया से। तमाम सियासतदानों को, तमाम सियासी जमातों को इस रिलेशनशिप को ओन करना चाहिए, इस पे मेहनत करना चाहिए। मगर आपने एक और
अफसोस के साथ एक नया प्रेसिडेंट देखा है जहाँ इस किस्म की हरकत हुआ है और उसका हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विजन 2030 के तहत मुल्की एक्सपोर्ट को $100 अरब तक ले जाने के लिए 40 मुख्तलिफ एसोसिएशन पर मुश्तमिल थिंक टैंक बना दिया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर अली फारूक से, जो इस वक्त FPSSI ऑफिस में साबिक सूबाई वजीर सनत और तिजारत और यूनाइटेड बिजनेसमैन पैनल के सरपरस्त आला SM तनवीर के हमरा मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ FPCCI के ऑफिस में, जहाँ साबिक वजीर SM तनवीर हमारे साथ हैं, सूबाई वजीर ट्रेड मिनिस्टर हैं। उनसे पूछेंगे आज का जो इजलास हुआ है इसके राज़ व मकासद क्या थे, और साबिक सदर भी FPCCI के यहाँ मौजूद थे, इरफान इकबाल शेख, इस हवाले से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इजलास हुआ जो आपने देखा है, इसमें हमने 40 एसोसिएशंस जो कंसर्न एसोसिएशन है उनको कमेटियाँ दी हैं। जो भी एसोसिएशन के, ये फेडरेशन एक एपेक्स बॉडी है पूरे पाकिस्तान की, जितनी एसोसिएशंस एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनके जो जो इश्यूज़ हैं उसको ये यहाँ पर हमारे को बताएंगे। फेडरेशन में हमने विजन 2030 अपना बना रहे हैं इस वक्त, और हमारा टारगेट है विजन 2030 में कि हमने $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे काम करने की ज़रूरत है, SEZs बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी। IT के टेक्नोलॉजी पार्ट्स पे काम हो रहा है और स्किल डेवलपमेंट पे, ये मैं आपको मोटी बात कर रहा हूँ। उसके लिए आज हमने जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम है उनको कमेटीज़ दे दी हैं। हम यहाँ पर 40 आदमी के PhDs की एक टीम क्रिएट कर रहे हैं जो फेडरेशन के पेरोल पे होंगे, और वो यहाँ पर काम करके फिर जो बड़े लेवल के थिंक टैंक्स क्रिएट हो रहे हैं उनको ये जाएगा, और हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के अपने बिजनेस कम्युनिटी का, अपने मुल्क की इकॉनमी के लिए काम करना है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये टारगेट अचीव होगा। सर, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, उसके इस हवाले से काफ़ी आपको सिफारिशात भी आई जो कि आपने खुद भी बताया, लेकिन उसको रद्द करके आपने ये काम किया, क्या कह रहे हैं? देखिए, राइट पर्सन, आपने खुद ही कह दिया राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इसके बगैर काम होता नहीं है। अगर कंसर्न एसोसिएशन से मैं पूछे बगैर काम करूँगा तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ? तो इसलिए हमने इस पे बहुत सख्ती की है, और अभी कमेटीज़ तो आज दी हैं, बट अब मेरी जॉब है कि मैंने हर हफ्ते एक कमेटी मेंबर को बुलाना है, उस कमेटी से मीटिंग करनी है, उनको ट्रैक पे चढ़ाना है, उनके मसले मसाइल सुनने और उसको आगे लेके जाना है। इरफान इकबाल शेख जो साबिक सदर भी यहाँ मौजूद थे, बड़ी खुशगवार आपकी मुलाकात भी हुई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आपको पता है ये फेडरेशन का इलेक्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन है, और इरफान भाई डेफिनेटली अलग पार्टी से थे और अलग पार्टी से थे, बट हम सब बिजनेस कम्युनिटी है और कोई दो पार्टियां नहीं हैं यहाँ पर। इलेक्शन ख़त्म हो गया, आप भूल जाएं, हम सारे एक हैं, उनकी ग्रेटनेस है, वो भी यहाँ। बल्दिया उस्मा लाहौर ने तजावुजात माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। DC लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफिया हैदर की हिदायत पर शहर में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी है। जोन में बैनर, स्टीमर हटाने, इंसदाद तजावुजात और लाइन मार्किंग की निगरानी भी जारी है। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 11 ट्रक तजावुजात सामान जब्त किया गया है। 130 आर्जी तजावुजात का सामान जब्त कर लिया गया। शहर के अहम शाहराओं और इलाकों से 480 बैनर और स्टीमर हटाए गए हैं। इंसदाद तजावुजात कार्रवाइयों में 73 चलान जारी हुए। DC लाहौर राफिया हैदर का मजीद कहना है कि चील गोश्त बेचने वाले 4 पॉइंट को खत्म करवा दिया गया है। जोनल अफसरान की जानिब से मखसूस हदूद में कारोबार के लिए लाइन मार्किंग की निगरानी भी जारी है। तजावुजात से मुतालिक सोशल मीडिया पर मौसूल होने वाली शिकायत को भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। ट्रैफिक के मसाइल में कमी और आमदोरफ्त में आसानी के लिए इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी रहेगा। अफसरान अहम शाहराओं पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर न होने के लिए ट्रैफिक पुलिस से राब्ता रखें। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खावर नहीद मोहल कहती हैं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ गंदम के हवाले से किसानों के मसाइल का हल निकाले। किसानों को गंदम की मुकर्ररा हुकूमती इमदाद कीमत नहीं मिल रही है और बारदाना के हसूल के लिए भी किसान मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा कि महंगी यूरिया, DAP खाद, पेट्रोल, डीजल और भारी बिलों की अदायगी के बाद अगर किसान की पैदावारी लागत भी पूरी ना हो तो ये जुल्म है जिससे कोई नया बहरान जन्म ले सकता है। कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। तो उनको भी नजर, मेरा पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये पैगाम है कि सारी सूरत हाल किसानों की उनको भी नजर आ रही है। देखें जी, बहुत ज़्यादा किसान ने पैसा लगाया, बिजली के बिल देख लें,
यूरिया खाद की कीमत देख लें, दूसरी देख लें, हाल मतलब टोटल चीज़ों पे एक्सपेंस इतना ज़्यादा आया है कि जो कि कीमत उसके बराबर कुछ भी नहीं है गंदम की कीमत है। मेरी वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है कि वो ऐप को भी चेक करें, ऐप भी बिल्कुल नाकाम जा रही है, ऐप पे भी कुछ काम नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये है कि कीमत को सही मतलब ख़रीदा जाए, बारदाना नहीं मिल रहा लोगों को, बहुत सारे मसाइल हैं। अगर किसान के साथ यही सलूक किया गया तो पहले ही किसान तो पहले ही मारा पड़ा है। और इतना यानी कि ये लोग जाएं जहाँ पे गंदम काश्त हो रही है, वज़ीर आला साहिबा आप तशरीफ़ लेकर जाएं गाँव में, आपको पता चले कि किसान इतना गरीब है कि आप लोग इधर लाहौर में बैठ के देख रहे हैं, अगर किसान को उसकी सही कीमत ना मिली तो मुल्क में एक नई अफरा तफरी पैदा हो जाएगी और हालात बहुत संगीन सूरत। लाहौर में रोटी और नान की नई कीमत के इतलाक के लिए कार्रवाइयां जारी। 2254 मकामात की चेकिंग, सिर्फ 2036 मकामात पर खिलाफ वर्जी पाई गई। वज़ीर आला पंजाब की खुफिया टीमों की भी आजादाना तरीके से 190 मकामात की क्रॉस चेकिंग में 18 खिलाफ वर्जियां पाई गई हैं। 95 मकामात, 59 गिरफ्तारियां, 3,85,000 के जुर्माने किए गए। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि रोटी नान की कीमतों पर अमल दरामद के लिए तमाम इंतजामी अफसरान फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक है। एसी कैंट नबीन मेमन ने 3 को सील, 1 गिरफ्तार जबकि 20,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। एसी रायविंड जैनब ताहिर ने 2 तंदूर मालिकान को रेड लिस्ट अवेसा न करने पर गिरफ्तार करवाया। डीसी लाहौर राफिया हैदर का मजीद कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातमा ने रोटी और नान की कीमतों की खिलाफ वर्जी पर एक तंदूर को सील करवा दिया। इंतजाम के अफसरान मेंबरान सूबाई असम्बली की सरबराही में फील्ड चेकिंग कर रहे हैं। रोटी और नान जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। सवात, चित्राल और खैबर में शदीद बारिशें, मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सवात के इलाकों मट्टा और बहरीन में शदीद बारिशों के बाद मनकियाल से कलाम जाने वाली सड़क लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई। पाक फौज के दस्तों ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई सियाह भी फंस गए हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना है। पाक फौज ने न सिर्फ सियाहों को खाने पीने की अशिया फराहम की है बल्कि उन्हें रेस्क्यू भी किया है, जिस पर सियाहों ने खुशी का इजहार करते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। चित्राल में भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज ने मुसाफिरों के लिए खसूसी मेडिकल कैंप लगाया जिसमें मुसाफिरों का मुफ्त तिबी मुआयना और मुफ्त अद्वियात फराहम की। चित्राल में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कई राब्ता सड़कों को बहाल कर दिया गया है। जिला खैबर के इलाके शलमान में भी लैंड स्लाइडिंग के बाद पाक फौज ने इमरजेंसी बुनियादों पर काम करते हुए राब्ता सड़क बहाल कर दी। पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में कौम की खदमत के लिए मुतहरिक रहेगी। और नाज़रीन, लाहौर पुलिस की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। सीसीटीवी कैमरों और सेफ सिटी कैमरों की इंस्टॉलिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। इलेक्शन के रोज लाहौर के रोड पर डॉल्फिन, पीआरयू और थाने की गाड़ियां अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए गश्त करती दिखाई देंगी। तर्जुमान ऑपरेशन विंग आका एहतशाम ने वसीम साबिर से गुफ्तगू करते हुए बताया कि डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की जानिब से थानेदारों के हमरा इजलास मुनाकिद किया गया है। डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि तमाम पुलिस अफसरान इलेक्शन ड्यूटी को जिम्मेदारी और इबादत समझकर अदा करें। तमाम जवान अपनी ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचे और पाबंदी का ख्याल रखा जाए। डीआईजी का कहना है कि कोई भी जवान ताहुक्म सानी अपना पॉइंट नहीं छोड़ेगा और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, जबकि पोलिंग यूथ तक इंतखाबी सामान की तरसील की सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दी जाएगी और पोलिंग स्टेशन के अंदर आने अफराद को चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया जाएगा।
सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सोहेल शौकत भट्ट की सहाफियों से गैर रस्मी मुलाकात। सहाफियों ने सोहेल शौकत भट्ट को सूबाई वजीर बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबाई वजीर का कहना है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट खवातीन की फलाह बहबूद के लिए गिरा कदर खदमात सर अंजाम दे रहा है। इस महकमे से वाबस्तगी नौकरी नहीं इबादत है। बेसहारा खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इदारों में बहुत सी इस्लाहत लाने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खुसूसी बच्चों के लिए जरूरी इकदाम लेने पर काम शुरू कर दिया गया है। सोहेल अकबर भट्ट ने मजीद कहा कि इदारों में दी जाने वाली सहूलियात को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। आर्ट इस्लाम में वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर किसी खातून को रेस्क्यू भी करना पड़ा तो वो भी कर सकेंगे। फोर्स बनाने के हवाले से बाकायदा नशिस्त की जाएगी, जबकि इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। सहाफियों ने सोहेल शौकत भट्ट को यकीन दिलाया कि महकमा की बेहतरी और इस्लाह के लिए हम आपके साथ हैं। मुलाकात के मौके पर तर्जुमान किरण भट्ट भी मौजूद थी। लाहौर एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में मेहरान अजमल खान बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। जनरल सेक्रेटरी दीबा मिर्जा, सीनियर नायब सदर खवातीन विंग राफिया, सीनियर नायब सदर की सीट पर तलहा कुरैशी, नायब सदर दानियाल उमर, ज्वाइंट सेक्रेटरी जिशान चिश्ती, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद आसिम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज उस्मान रंदावा मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के फराइज मंसूर मलिक ने अदा किए हैं। गवर्नर पंजाब अलीउर रहमान, सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन शाहिद मुनीर, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर काशिफ जावदानी नौ मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने अमीरुल अजीम को सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया है। आपको बताते चलें कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने अमीरुल अजीम को सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी मुकर्रर कर दिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने अमीरुल अजीम को सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने अमीरुल अजीम को सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने अमीरुल अजीम को सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, बताइएगा। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने अमीरुल अजीम को सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने अमीरुल अजीम को सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। 18 अप्रैल को मुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने जमात इस्लामी पाकिस्तान के हेडक्वार्टर मंसूरा लाहौर में हल्फ उठाया था। उस वक्त जमात इस्लामी का मरकजी मजलिस शूरा का इजलास जारी था और अभी भी जारी है। यह इजलास 19 ता 21 अप्रैल तक मुनक्किद किया गया है। जिस तरह हाफिज नईमुर रहमान इजलास की सदारत कर रहे हैं, उन्होंने कुछ अहम ओहदों की तकर्रुरी की है। हाफिज नईमुर रहमान ने मरकजी मजलिस शूरा के इजलास के पहले रोज शूरा से मुशावरत के बाद अमीरुल अजीम को जमात इस्लामी का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया है, जबकि पहले मरहले में लियाकत बलोच, मियां मोहम्मद असलम, डॉक्टर अताउर रहमान और डॉक्टर उसामा रजी को नायब उमरा जमात इस्लामी पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया है। जबकि दीगर नायब उमरा के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल होने के बाद मजीद नायब उमरा और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का तकर्रुर बाद अदा किया जाएगा। जी ठीक है तैमूर, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।